The Lord will reign forever. Your God, O Zion, to all generations, praise the Lord. For our meditation this morning, I have chosen from Judges chapter 2, verse 16. Then the Lord raised up judges who saved them out of the hand of those who plundered them. Good morning, friends. When the Lord listens to the cry of the people, He responds irrespective of what they have been to Him. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is, Lord raised up judges. Here we understand the people of God were in the land which was given unto them. They were enjoying the blessing of God in the promised land. Yet there were many who were not being driven out at that point in time. So the people of God were not very obedient. They had moved away from God, but they had to face challenges for their living and staying in the promised land. At that point in time, the people cried out to the Lord, for they were being plundered by other people. Their might was more than they could expect. So the Lord raised up judges to protect them from the hands of those who plundered them. Friends, the Lord who has chosen us to be His people is so faithful. No matter what His people have been, the Lord is faithful. He protects them from all kinds of evils and dangers. He loves them so much that He would not want to let them be plundered, be overpowered, and remain in such kind of situations. The Lord, time and time again, heard their cry and raised up judges so that those judges, being their leaders, would protect them from all the hands that plundered them. Friends, the Lord is so faithful. The Lord is so good. He will never let us be overpowered, be plundered. He is always with us. He is so faithful and good. He protects us. He guards us. He leads us and He blesses us. Let us be thankful to our God, who has given us people who protect us, who has given us leaders who are concerned for us. Let us thank God who listens to our prayers. Gracious God, our Heavenly Father, we thank You. Help us, Lord, in every way to be Yours. In Christ's name we pray, Lord. Amen. हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है न्याय अध्याय 2 वाक्य 16। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर अपने लोगों की पुकार को सुनता है तो वे अवश्य जवाब देता है, उनके कार्य जो भी हों। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, परमेश्वर ने न्यायों को उनके लिए खड़ा किया। यहाँ हम जानते हैं कि परमेश्वर के लोग वाचा की जमीन पर थे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। वे परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे थे उस वाचा की जमीन पर, लेकिन वहाँ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अब तक बाहर निकाला नहीं गया था। इसलिए परमेश्वर के लोग संपूर्णता आज्ञाकारी नहीं थे और वे परमेश्वर से दूर हो गए थे। इसलिए उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब वे उस वाचा की जमीन में रहते थे। और फिर परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा क्योंकि दूसरे लोग उन्हें लूट रहे थे। उनके शत्रु उनसे अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए न्याय ठहराए ताकि वे परमेश्वर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें उन लोगों से जो उन्हें तबाह करने की कोशिश करते थे। मित्रों, जो परमेश्वर ने हमें चुना है वो इतना वफादार है कि उसके लोग कैसे भी हो परमेश्वर वफादार बना रहता है और उन्हें
सारी बुराइयों से बचाता है। वो उनसे इतना प्रेम करता है कि वह नहीं चाहता है कि दूसरे लोग उन पर हावी हो जाएं, दुश्मन उनको पराजित करे और उन्हें ऐसी परिस्थितियों में डाले। परमेश्वर ने समय समय पर न्यायों को खड़ा किया ताकि वह उनके अगुवे बन सके और परमेश्वर उन्हें सुरक्षा प्रदान करे उन लोगों से जो उन पर आक्रमण करते हैं। मित्रों, परमेश्वर इतना भला है, परमेश्वर इतना वफादार है कि वो हमें पराजित नहीं होने देता। वो निरंतर हमारे साथ बना रहता है, वफादार रहता है और भला है। वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमारी अगुवाई करता है और हमें आशीषित भी करता है। आइए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें वह लोग दिए जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और जिसने हमें ऐसे अगुवे दिए जो हमारी चिंता करते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हर प्रकार से हम सिर्फ तेरे और तेरे बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।